हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम अवतार सिंह एंड ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ 1 + 2 + 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ n ਟਰਮਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, AP ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n/2, ਠੀਕ ਹੈ, and a + l। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ n+1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ n+1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੁਅਰਸ ਗਿਵਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ n ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦਾ n+1 2n+1/6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰਸ ਦਾ ਸਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, n+1 2n+1/6, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ + 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ n ਦਾ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ n+1/2 ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਫਸਟ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ AP ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ n+1/2, ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਹੇਗਾ n+1 2n+1/6। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿਊਬਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਟੂ n ਟਰਮਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ nth ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਲੈਟ an be nth term of above series, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਰਮਸ ਦੇਖੋ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮਸ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੋ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, therefore nth term is equals to nth term of
AP 1 2 3 4 फर्स्ट AP है जी अपनी कोले उस दी nth टर्म, ठीक है, इनटू nth टर्म ऑफ AP दूसरी AP केड़ी बन रही है अपनी 2 3 4 5 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। ओके सो इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई जिहड़ी अपनी मेन सीरीज है उसका की रहेगी nth टर्म रहेगी, सारे क्वेश्चन विच सेम ही रहेगा। ओके सो मैं इसनूं लिख देना an इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP जिहड़ी अपन नूं फर्स्ट AP है 1 2 3 4 सो इस दी nth टर्म दा अपन नूं फार्मूला पता, फार्मूला की सीगा a प्लस, हाँ जी, तो फार्मूला याद है ना, a nth टर्म कड्डण दा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही फार्मूला लगाउंदे सी तां d दी वैल्यू अपने कोल इत्थे कितनी है 1। ओके n दी वैल्यू पता नहीं, a दी वैल्यू भी कितनी है 1, सो मैं इत्थे पुट कर देना एंड ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है, बिकॉज d दी वैल्यू फिर 1 है। ओके फिर उस तो बाद मैं इनटू लिख लेना उदा ही एंड इस ते भी सेम फार्मूला AP सीरीज वाला, तो की बनेगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d दी वैल्यू फिर इत्थे 1 ही है, ठीक है, इत्थे भी d दी वैल्यू 1 सी। ओके सो हुण आपां इसनूं अगे सॉल्व करदे हां एंड ये बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, सो ऑब्वियसली 1 नाल 1 चला जाएगा। ओके एंड ये हो जाएगा अपने कोले 2 प्लस n माइनस 1, सो ये अपने कोले हो जाएगा n एंड ये बच जाएगा n प्लस 1, ठीक है। सो हुण अपने कोले जिहड़ी nth टर्म बनी है अपनी मेन सीरीज दी ओह की बन गई, सो मैं इत्थे लिख देना जिहड़ी आपां an लेके चले सी, सो an की बन गई n स्क्वायर, सो इसनूं अंदर मल्टीप्लाई कीता n स्क्वायर हो गया एंड फर्दर अगे कीता ये बन गया n, ठीक है, ये अपनी कोले nth टर्म बन गई। सो हुण देखो हुण आपां जो पहला स्टार्टिंग दे विच इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कीते सी तो उस नाल कंपेयर करके आपां सम दा फार्मूला लगा सकते हैं, जिवें कि जिहड़ी फर्स्ट टर्म आ उस ते किहड़ा लगेगा स्क्वायर वाला यानी कि सेकंड रिजल्ट एंड जिहड़ी फर्स्ट उस तो अगली टर्म आ उस ते किहड़ा लगेगा फर्स्ट फार्मूला, जिहदे विच आपां कहा सी 1 2 3 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स तक दा सम कैलकुलेट करना, ठीक है। सो आपां फार्मूले दे विच पुट कर दिंने आ, सो ये अपना हो जाएगा, हाँ जी, तो मैं सारे नूं इरेज कर देना बिकॉज अपनी कोले हुण nth टर्म तो बन ही चुकी है, ठीक है, अपनी कोले nth टर्म की आई है n स्क्वायर प्लस n, सो मैं इत्थे फिर लिख देना nth टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। तो जेकर आपां सम कैलकुलेट करना होवे तो आपां नूं सम दा फार्मूला कीता होया आपां Sn इज इक्वल टू, हाँ जी, तो फर्स्टली मैं इस दा सम कैलकुलेट करना, सो इस नूं आपां की लिख सकते हैं जेकर 1 2 3 4 वैल्यूज पुट करिए, सो ये इदां दी हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर, ठीक है, यही चीज बन जाएगी ना फर्स्ट वाली। ओके एंड जी दूसरी है यही की बन जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, ठीक है। सो हम आपको ईजिली फॉर्मूले भी पता किहड़े लगाने आ, इस ते तां लगेगा फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इस ते लगेगा सेकंड वाला। ओके सो अपने कोल की सी इन्हां दे आंसर्स, तो फर्स्ट दा मैं तुहानू कहा सीगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, याद कर लियो आपां लास्ट स्लाइड दे विच कीता सी। ओके एंड इसका की कीता सी आपां n प्लस 1 अपॉन 2, ये तो अपनी AP सीरीज ही बनी पई है सिंपल। ओके सो हुण इन्हां दे विचों आपां अगे कैलकुलेट करिए, जेकर आपां नूं कॉमन की निकल रहा है n प्लस 1 अपॉन 2, ये सारे दे विचों कॉमन निकल रहा है दोनों टर्म्स विचों एंड अंदर की रह जाएगा, इत्थे रह जाएगा अपने कोले 2n प्लस 1 अपॉन 3 एंड इत्थे की रह जाएगा ओनली 1, क्लियर। सो अपना आंसर आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, सो इसनूं आपां फर्दर सॉल्व कर लेने आ, ये हो जाएगा 2n प्लस 3 प्लस इत्थे अपने कोले 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 3। सो अपना आंसर कितना आ जाएगा, मैं इत्थे ये करके लिख देना n प्लस 1 अपॉन आपां कितना लिख सकते हैं 6। ओके सो अंदर अपना कितना रह गया 2n प्लस 4, ठीक है, ये 6 के में कीता 3 इंटू 2 करता, क्लियर। सो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर रहेगा फर्स्ट सम का, ठीक है।
सो क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी रहेंगे, बट मेन चीज ये रहेगी भी आप nth टर्म कितना कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जेकर आप nth टर्म कैलकुलेट कर ली उस तो बाद तो बिल्कुल ईजी है, आप तीन फॉर्मूले कर ही ले। फर्स्ट आप AB वाला कीता सी, उस तो बाद स्क्वेयर्स वाला कीता सी, उस तो बाद क्यूब वाला कीता सी, वो फॉर्मूलेस दे विच ही पुट करना। बट मेन चीज की रहेगी nth टर्म कैलकुलेट करनी। ठीक है, जिवें आप इत्थे nth टर्म कैलकुलेट कर ली सी n स्क्वेयर प्लस n। सो सिंपली अपन पता लग गया फर्स्ट टर्म ते तो अपन ला देंगे स्क्वेयर वाला फार्मूला एंड इस ते लगा देंगे अपना फर्स्ट फार्मूला। सो मैं दोनों लगाते, उस तो बाद कैलकुलेट करके अपना आंसर आ गया। एंड अपन सेकंड क्वेश्चन गिवन है 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5। सो आप सम कैलकुलेट करना n टर्म्स तक। जिसनु फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पता लग गया वो इस तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट ध्यान नाल करियो बिल्कुल सेम रहणगे। ओके, सो जिवें आप फर्स्ट क्वेश्चन विच कीता सी, मैं तुहानू कहा सी भी फर्स्टली आप nth टर्म कैलकुलेट करते हैं फिर ही उसका सम कैलकुलेट करांगे। ठीक है, सो मैं nth टर्म नू किदां लिख सकदा हूं, लेट an be nth टर्म ऑफ above सीरीज। ठीक है, above सीरीज। ओके, तो हुण अपन नू क्लियर हो रहा है। मैं तुहानू फर्स्ट सम दे विच दस्सिया सी भी अपने कोले दो AP सीरीज बन रही सी। ठीक है, पहली तो अपने कोले बन रही सी सारियां दी फर्स्ट टर्म्स दी एंड दूसरी बन रही सी सारियां दी सैकेंड टर्म्स दी। तो इत्थे ध्यान नाल देखियो जी, अपने कोले तीन AP सीरीज बन रही हैं। फर्स्ट तो ये बन रही है 1 2 3, इत्थे अपने कोले 4 आ जाएगा अप टू सो ऑन। एंड सेकंड देखो, सेकंड किहड़ी बन रही है 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरीके। सो ये भी अपने कोले AP बन रही है। एंड थर्ड किहड़ी बन रही है ये वाली 3 4 5। सारियां दा अपने कोले कॉमन डिफरेंस 1 ही आ रहा ना। सो अपने कोले ये तीन AP सीरीज बन रही हैं। एक तो बन रही है सारियां दी फर्स्ट टर्म दी, एक बन रही है सारियां दी सैकेंड टर्म दी एंड एक बन रही है सारियां दी थर्ड टर्म दी। ओके, सो मैं इसनू किदां लिख सकदा, सो an is equals to nth term of AP, फर्स्ट AP अपनी कोई केड़ी बन रही है 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इनटू फिर उस तो मल्टीप्लाई nth टर्म ऑफ AP, दूसरी AP केड़ी बन रही है 2 3 4 अप टू सो ऑन 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन एंड इनटू थर्ड AP। ठीक है, जिन्नियां अपने कोले AP बन रही होण ਜਾਂ जिन्नियां अपने कोले होर काइंड ਦੀਆਂ सीक्वेंस बन रही होण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪलाई ਚ ਲਿਖਣਾ। ठीक है, ओके, सो थर्ड केड़ी बन रही है nth टर्म ऑफ AP 3 4 5 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ओके, सो हुण देखो जी इस दा अपने कोले बिल्कुल सेम जिवें आपां लास्ट क्वेश्चन विच कीता सी तां अपने कोले ये AP सीरीज बनी पई है। आपां नूं nth टर्म दा फार्मूला आउंदा, सो nth टर्म दा फार्मूला की सी an is equals to a plus n minus 1 into d, यही फार्मूला सी। सो d दी वैल्यू अपने कोले इत्थे कितनी है 1। ओके, सो मैं फर्स्टली लिखदा an is equals to, तो फर्स्ट दा लिखदा ओनली। ठीक है, सो फर्स्ट दा की बन जाएगा 1 plus n minus 1 into d। ठीक है, सो फर्स्ट दा अपने कोले ये फार्मूला बन जाएगा। उस तो बाद मल्टीप्लाई सेकंड दा की बन जाएगा, सेकंड दी फर्स्ट टर्म की है अपने कोले 2, सो ये बन जाएगा 2 plus n minus 1 into d। ठीक है, उस तो बाद आप थर्ड दा लिखते हैं। सो थर्ड दी फर्स्ट टर्म अपने कोले की है n, सो मैं ये मल्टीप्लाई लिखी एंड ये हो जाएगा अपने कोले 3 plus n minus 1 into d। d दी वैल्यू अपने कोले कितनी सीगी 1। क्लियर, सो हुण आपां इन्हां नूं फर्दर अगे सॉल्व कर लैंदे हां। हां जी, तां अपने कोले फर्स्ट की बन जाएगा इस 1 नाल तां 1 कैंसिल ही हो जाएगा एंड ओनली इस ब्रैकेट चों अपने कोले की बचेगा n। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू मैं लिख लेना nth टर्म। ओके, इनटू, सो सेकंड ब्रैकेट चों अपने कोले की बचेगा, इत्थे ध्यान नाल आपां इत्थे कैलकुलेट कर लैंदे हां। 2 तां उदां ही पिया n minus 1, सो a minus 1 इस माइनस हो जाएगा एंड बचेगा अपने कोले n plus 1। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट जो अपने कोले a टर्म बची है एंड थर्ड ब्रैकेट जो अपने कोले की बचेगा
देखो जी 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, सो अपने को बचेगा n+2। क्लियर। सो हुण आपां इन्हां नूं अंदर मल्टीप्लाई कर लैंदे आ। मैं एक बार उपरली टर्म नूं इरेज कर दिना सारे नूं। सो ये हो जाएगा हाँ जी, तो फर्स्टली n × n+1 कर दिने आ, तो अपने को की बनेगा n² + n। ठीक है, इंटू च अपने को थर्ड टर्म की सीगी n+2। क्लियर। ओके, सो फिर आपां अगे इस नूं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। पहला आपां n² नूं सारी ब्रैकेट नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ, तो ये की बनेगा n³ + 2n²। ठीक है, उस तो बाद आपां इस n नूं सारी ब्रैकेट नाल मल्टीप्लाई करते हैं। तुसीं जिवें मर्जी बस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, सो ये हो जाएगा n² + 2n। क्लियर। सो फर्दर आप इस दी वैल्यू अपने को की बन जाएगी n³ + 3n² + 2n। ठीक है, इस तो अगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। सो अपने को nth टर्म दी वैल्यू की आ गई दिस वन। क्लियर। सो हुण आप सम दा फार्मूला लगाउणा, तो सम दा फार्मूला हुण तुहानूं ईजीली पता लग गया होना भी जिहड़ी फर्स्ट टर्म आ इस ते किहड़ा लगेगा थर्ड वाला फार्मूला जिस विच आपां किहा सी क्यूब वाला, एंड इस विच किहड़ा लगेगा स्क्वायर वाला, एंड इस विच किहड़ा लगेगा सिंगल जो आपां फर्स्ट वाला यूज कीता सी। ठीक है, सो आपां फार्मूले दे विच पुट करदे हां। तो फर्स्टली अपने कोले इस चीज नूं मैं किदां लिख सकदा? हाँ जी, तो मैं इत्थे लिखता Sn = ओनली इस नूं मैं किदां लिख सकदा 1 दा क्यूब + 2 दा क्यूब अप टू n³। ठीक है, इदां लिख ही सकते हैं, वैल्यूज ही पुट कीतियां जस्ट। ओके, उस तो बाद प्लस 3 अपने को बाहर ही पिया जी। ठीक है, n² नूं किदां लिख सकते हैं 1² + 2² + 3² अप टू n²। ठीक है, मेन तो अपन ये चीज पता होना चाहिए भी जो फॉर्मूला वो इतने स्क्वेयर वाला लगेगा, ता करके मैं इसमें थोड़ा जिहा खोल के लिख रहा। ठीक है, एंड थर्ड अपने को की बन जाएगा इस 2 मैं उदा ही बाहर लिख लेना, एंड अंदर की रह जाएगा अपने को 1 + 2 + अप टू n। क्लियर। तो फर्स्टली आप साइड ते फॉर्मूलेज लिख लेने हैं। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला तुहानूं की दस्सिया सी, फर्स्ट सीगा अपने को n+1/2। ठीक है, यही सीगा ना, एंड इस तो बाद सेकंड किहड़ा सीगा n+1 2n+1/6। ये अपने को स्क्वायर वाला सीगा। ठीक है, मैं इत्थे लिख देना स्क्वायर वाले दा। एंड थर्ड अपने को क्यूब वाला सी। सो क्यूब दा किहड़ा फार्मूला सी जिहड़ी फर्स्ट वाला सी उस दा स्क्वायर। सो इस नूं मैं इदां लिखिया सी n+1/2 इस दा स्क्वायर। सो यही अपने को तीन फार्मूले कीते सी आपां। सो इस सम विच तिन्ने फार्मूले ही यूज हो रहे हैं। ओके, तो फर्स्टली आपां क्यूब वाले विच पुट करदे हां, तो की बन जाएगा n+1/2 इस दा स्क्वायर। ठीक है, उस तो बाद प्लस 3 नूं मैं उदां ही बाहर लिख लिया जी। ब्रैकेट दे विच आपां स्क्वायर वाले दा फार्मूला पुट करना। सो स्क्वायर दा फार्मूला किहड़ा सी अपने कोले n+1 2n+1/6। ठीक है, उस तो बाद प्लस पाया, एंड इस 2 मैं बिल्कुल सेम उदा ही लिख लिया। एंड फर्दर अपने को फर्स्ट फार्मूला लीनियर वाले दा ये की सीगा n+1/2। ठीक है, सो हुण आपां सिंपल कैलकुलेशन ही करनी है, बिल्कुल ईजी रहेगा आगे तो। सो ये हो जाएगा हाँ जी, तो फर्स्टली मैं इसनूं खोल देना, तो यही अपने को की बनेगा स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा। सो Sn = n² n+1 दा होल स्क्वायर अपॉन 2 दा स्क्वायर हो जाएगा अपने को 4। ठीक है, ओके, सो यही अपने को सिंपली कटे जाएंगे 3 ते 6। सो यही अपने को बनेगा n+1 2n+1/2। ठीक है, एंड थर्ड की बनेगा ये 2 नाल 2 चला जाएगा, एंड थर्ड इत्थे रह जाएगा अपने को n+1। सो हुण आपां इसनूं फर्दर अगे कैलकुलेट करदे हां। तो अपने को कॉमन की निकल रहा सारे दे विचों, कॉमन निकल रहा सारे विचों अपने को n ते n+1। ठीक है,
सो मैं इत्थे कॉमन कढ लेना Sn इज इक्वल्स टू n प्लस 1 ये कॉमन कढ लिया। सो अपने कोले फर्स्टली इत्थे अंदर की बचेगा तो इत्थे रह गया हो बिकॉज n दा स्क्वायर सी एक n रह गया हो n प्लस 1 दा भी स्क्वायर सी एक n प्लस 1 हो रह गया हो अपॉन बचे अपने कोले 4 ठीक है। एंड इत्थे की बचा इत्थे अपने कोले बच गया 2n प्लस 1 अपॉन 2 बिकॉज आ वाली टर्म तो बाहर ही निकल गई। एंड थर्ड विच अपने कोले की बचा ओनली 1 बिकॉज सारे बाहर निकल गए ठीक है। सो हुण आपां इसदा एलसीएम ले लेने हैं तो एलसीएम लेके अपने कोले कितना बनेगा ये तो उदा ही आ गया बाहर ठीक है। सो यही अपने कोले हो गया मल्टीप्लाई कर देने सिंपल 8 हो गया। सो इसमें जेकर मैं लिखा 2n स्क्वायर प्लस 2n ठीक है। एंड इसमें जेकर लिखिए 8n प्लस 4 एंड यही अपने कोले हो जाएगा 8 ठीक है। तुसी अपने अकॉर्डिंग जिवें भी एलसीएम लेके इसमें अगे सॉल्व कर लो ओके। सो अपने कोले आंसर आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 8 तो ब्रैकेट दे विच अपने कोले की बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 12 ठीक है। सो इस दे विचों भी अपने कोले 2 कॉमन निकल रहा 2 कॉमन निकल गए इस नाल कट्टिया जाएगा एंड अपने कोले आंसर बचेगा। सो मैं इत्थे आंसर लिख देना डायरेक्ट n प्लस 1 अपॉन 4 बिकॉज 2 कॉमन निकल के इस नाल कट्टिया जाएगा ना। सो अंदर की बचेगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 ठीक है। सो थोड़े जे वड्डे क्वेश्चन रहेंगे बट ईजी रहेंगे बस आप कोशिश करनी है पहला आप nth टर्म कैलकुलेट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहना काली नहीं करनी ठीक है अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्लियर। सो अपने को थर्ड क्वेश्चन गिवन है 3 into 1 दा स्क्वायर 5 into 2 दा स्क्वायर प्लस 7 into 3 दा स्क्वायर। सो आप बिल्कुल सेम सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करना तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन करना तो इस विच भी मैं तुहानू हिंट दे देना तो अपने को दो सीरीज बनिया पईयां जरूरी नहीं भी वो AP ही होण ठीक है। ये जरूरी नहीं भी दोनों सीरीज आ जिहड़ियां वो AP ही होण बट कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनी पई होएगी जिवें कि अपने को फर्स्ट AP बनी पई है ठीक है। सो मैं इत्थे लिख देना nth टर्म ऑफ अबव सीरीज इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ 357 अप टू सो ऑन ठीक है इनटू उस तो बाद आप मल्टीप्लाई लिख देने पहला भी क्वेश्चन विच सेम ही कीता इनटू nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सो मैं इसनु कितना लिख सकदा सिंपल इदां लिख दिंदे 1 2 3 अप टू सो ऑन सारे दा स्क्वायर लिख दिंदे ठीक है ओके। प्लीज तुसी इदां ही करना है जेकर इत्थे क्यूब मिल जे तो सारे दा क्यूब लिख दियो। हुण देखो जी अंदर वाली चीज है ये तो अपने को फिर AP ही बनी पई है ठीक है 1 2 3 तो अपने को AP बनी पई है। सो आप इसनू अगे किदां करांगे सो फर्स्टली आप इस ब्रैकेट नू सॉल्व करदे हां तो फार्मूला अपने को बिल्कुल वही nth टर्म कढण दा डिफरेंस कितना अपने को 2 सो इथों ये बन जाएगा ठीक है। फिर उस तो बाद मैं इनटू लिखा एंड इसनू अगे किवें सॉल्व कर सकते हैं प्लीज ओ स्क्वायर नू उदां ही ऊपर नाल लेंदे आए ठीक है। जेकर उत्थे क्यूब मिल जे फिर भी उसनू नाल उवें ही लेंदे आए बट अपने को अंदर फार्मूला की बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऊपर अपने को आ गया स्क्वायर ठीक है। सो फिर इसनू आप आगे कैलकुलेट करते हैं 3 प्लस 2n माइनस 2 एंड यही अपने को हो जाएगा। सो 1 नाल तो अपने को 1 चला जाएगा एंड इथों की बचेगा अपने को n स्क्वायर बिकॉज आ स्क्वायर सीगा ठीक है। सो अपने को nth टर्म कितनी आ जाएगी 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। सो इसमें अंदर आप होर मल्टीप्लाई करांगे एंड ये बन जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर ठीक है। अगे ये सॉल्व नहीं हो रहा सो अपनी nth टर्म ये वाली बन गई। सम तुसी आप कैलकुलेट करके देखियो बिकॉज अपने को एक फार्मूला लगेगा n क्यूब वाला एंड एक लगेगा स्क्वायर वाला ठीक है। एंड अपन नेक्स्ट सम गिवन है फाइंड द सम इफ nth टर्म इज गिवन ओके। सो लास्ट क्वेश्चन दे विच तां आपां nth टर्म नूं पहला कैलकुलेट करदे सी फिर उस तो बाद सम दे विच पुट करदे सी ठीक है। बट हुण आपां नूं ईजी दिता होया nth टर्म ऑलरेडी गिवन है
ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ nth ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ an is equals to n plus 1 n plus 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ n ਸਕੁਅਰ plus n ਐਂਡ ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n plus 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ n ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n ਕਿਊਬ plus 4n ਸਕੁਅਰ, ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ n ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ n ਸਕੁਅਰ plus 4n। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ nth ਟਰਮ ਮੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ n ਕਿਊਬ plus 5n ਸਕੁਅਰ plus 4n। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ nth ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ n ਸਕੁਅਰ plus 2 raised to power n। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ n ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ n plus 1 2n plus 1 ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ upon 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ 2 raised to power n ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 raised to power 1 2 raised to power 2, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 raised to power 3 n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਚਲੋ 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ 2 raised to power n ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਜੀਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ 4/2 ਆਪਾਂ ਜੀਪੀ ਦੀ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਆਵੇ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ 4/2 ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 8/4 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਜੀਪੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਜੀਪੀ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜੀਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੀਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ Sn is equals to a r raised to power n minus 1 upon r minus 1। ठीक है, सो ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, obviously a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 2 raised to power 1 means to say 2। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, r ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ 4/2 ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਹੀ r ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, n ਦੀ ਆਪਾਂ n ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਵਿੱਚ a ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਤੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ nth ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ nth ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2n 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ a b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ minus 2ab। ਸੋ nth ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4n ਸਕੁਅਰ minus 4n plus 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ n ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 9th 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ n ਟਾਈਮਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ n। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ sum is equals to 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ n ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ n ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ n plus 1 2n plus 1 upon 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ n ਦਾ, 4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
n plus 1 upon कितना सीगा 2। ओके सो प्लस 1 की जगह ते आपां की लिखांगे n। क्यों लिखांगे? बिकॉज ध्यान नाल देखियो आपां सारिਆਂ ते ਸਮੇਸ਼ਨ कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ 1 ਤੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ n। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਟੂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਰਡ ਟਰਮ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। मैं एक बार फर्स्ट टू टर्म्स विचों कॉमन करदा एंड अपने कोले की बन जाएगा हाँ जी तो अंदर अपने कोले n plus 1 दोनों विचों कॉमन निकल रहा है तो मैं इथों कॉमन कर देना 4 भी निकल रहा नाल 4 n plus 1 अपॉन इथे 6 है इथे 2 है सो 2 भी निकल रहा है। ठीक है ये सारी चीज कॉमन निकल रही है फर्स्ट टू टर्म्स विचों तो अपने कोले अंदर की बचेगा तो इथे अपने कोले रह गया ओनली 2n plus 1 अपॉन 3 बिकॉज 2 तो आप कॉमन ही कट लिया एंड इथे अपने को की रह गया ओनली 1 ही रह गया बिकॉज सारी टर्म ही कॉमन निकल आई। क्लियर ओके सो प्लस सारे दे बाहर आप n लिख लिया सारे तो बाहर है n। ठीक है ओके सो इसमें आप सॉल्व करते हैं एंड ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है बाहर वाली चीज को सॉल्व कर लिया एंड अंदरली ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2n plus 1 minus 3 plus n। क्लियर सो मैं इस ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ एंड ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈ ਮੈਂ 2n square plus 2n ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ एंड अंदर ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ 2n minus 2 minus 2 upon 3। क्लियर तो ब्रैकेट तो बाहर अपने कोले की पिया प्लस दे विच n सो जिथों तक सॉल्व हुंदा आपां करदे रहने हैं। ठीक है ओके सो 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ अपने कोले 2n स्क्वायर plus 2n upon 3 ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ हाँ जी तो ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 2 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ n-1 ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ n। ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ मैं इदा करता इधर इरेज करके इत्थे कर लेंगे आप सारा सो यही हो जाएगा हाँ जी तो फर्स्टली फर्स्ट टर्म अपनी को बन जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 4n ब्रैकेट तो बिच आ गया अपनी को n-1 अपॉन अपनी को हैगा जी 3। ठीक है प्लस दे विच फिर अपनी को n पई है। ओके सो इसनु फर्दर सॉल्व करिए यही अपने को हो जाएगा 3 अपने को एलसीएम आ गया 4n स्क्वायर प्लस 4n n-1 प्लस 3n यही चीज बन गई। सो आप इसनु अगे कैलकुलेट कर सकते हैं तो प्लीज इसनु अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n स्क्वायर नु इस नाल मल्टीप्लाई करते हैं पहला तो की बनेगा 4n क्यूब। ठीक है माइनस 4n स्क्वायर फिर आप इस करते हैं तो यही की बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 4n तो प्लस दे विच अपना उमें 3n पिया। क्लियर अपॉन आ गया अपना 3 सो हुण अपना बस आंसर आए पिया तो यही तो एक आप उदा ही लिख लिया 4n क्यूब ये दोनों कट्टे गए सो 4n माइनस दे 4n प्लस 3n तो कितना आ जाएगा माइनस n अपॉन 3। सो इस दे विचों आपां n कॉमन कर देने आ एंड यही की बनेगा n अपॉन 3 तो अपने को बाहर आ गया सो अंदर की बचा इत्थे रह गया अपने को 4n स्क्वायर एंड इत्थे की बचा ओनली 1। ठीक है ये इत्थे भी छड्ड सकते हैं आपां आंसर नूं एंड थोड़ा जिहा होर अगे करना तो आपां इदां भी लिख सकते हैं n अपॉन 3 मैं उदां ही लिखता सो यही अपने को की बनया पिया आइडेंटिटी बनी पई आ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो प्लीज मैं इसनूं थोड़ा मोल्ड करके लिख रहा
ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 2n ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2n ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2n ਪਲੱਸ 1। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।